تلنگانہ ہائی کورٹ میں آرٹیسی ہڑتال پر سماعت 1 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ عدالت نے آرٹیسی کے ایم ڈی کو 31 اکتوبر سے پہلے ملازمین کے بقایا جات ادا کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے آرٹیسی کے مالی امور کے ذمہ داروں کو اگلی سماعت کے دوران حاضر رہنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ آرٹیسی ملازمین کی جانب سے 30 اکتوبر کو منعقد کی جانے والی عام ہڑتال کو عدالت نے مشروط اجازت دی ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کلکٹر نے عام ہڑتال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد آرٹیسی جے اے سی اس معاملے کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ 30 اکتوبر کو آرٹیسی ملازمین افراد خاندان کے ساتھ احتجاج کریں گے۔ عدالت نے آرٹیسی ملازمین کو دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک سرونگر میں احتجاج کرنے کی اجازت دی ہے۔ واضح رہے کہ آرٹیسی ملازمین اپنے مطالبات کو لے کر گزشتہ 25 دنوں سے ہڑتال پر ہیں۔ قربانیوں کے بعد حاصل کردہ تلنگانہ میں احتجاج کرنے کے جمہوری حق کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ سی پی آئی لیڈروں نے آج نمس ہاسپٹل کے باہر احتجاج کیا۔ واضح ہے کہ آرٹیسی ملازمین گزشتہ 25 دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ حکومت مسائل پر توجہ دینے سے قاصر ہے۔ ہڑتالی ملازمین کی تائید میں سی پی آئی لیڈر سامبا شیوا راؤ نے بھوک ہڑتال شروع کی تھی، جنہیں پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے نمس ہاسپٹل منتقل کیا۔ گزشتہ 2 دنوں سے نمس ہاسپٹل کے ڈاکٹرز سامبا شیوا راؤ کی ہیلتھ بلیٹن بھی جاری نہیں کر رہے ہیں۔ ہیلتھ بلیٹن جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سی پی آئی لیڈروں نے احتجاج کیا۔ آرٹیسی ملازمین آج ریاست بھر میں ریلیاں منعقد کر رہے ہیں۔ آرٹیسی ہڑتالی ملازمین کے مسائل کے حل کا مطالبہ کرتے ہوئے عوامی تنظیموں نے حیدرآباد میں احتجاج کیا۔ برہم عوامی تنظیموں کے نمائندوں نے مشیرآباد چوراہے پر حکومت کا علامتی پتلا نذر آتش کیا۔ احتجاجی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آرٹیسی ملازمین گزشتہ 25 دنوں سے ہڑتال کر رہے ہیں۔ حکومت مسائل پر توجہ دینے سے قاصر ہے۔ ہڑتالی ملازمین کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا یہ اقدام جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے۔ اس دوران پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان کشیدگی دیکھی گئی۔ احتجاجی عوامی تنظیموں کے نمائندوں نے 30 اکتوبر کو منعقد ہونے والے جلسے عام کو کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی ہے۔ تلنگانہ بھر میں آرٹیسی ملازمین کی ہڑتال جاری ہے۔ آج ہڑتال کا 25واں دن ہے۔ کل کھمم میں خاتون کنڈکٹر نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی تھی۔ آج ہڑتالی آرٹیسی ملازمین نے مشترکہ ضلع کھمم کے تمام ڈپوز پر دھرنا دیا۔ اپوزیشن جماعتوں کے لیڈرز بھی احتجاج میں شامل ہیں۔ ہڑتالی ملازمین اور لیفٹ پارٹی لیڈروں نے سڑک پر بیٹھ کر دھرنا دیا۔ پرائیویٹ ڈرائیورز اور کنڈکٹرز سے ہڑتالی آرٹیسی ملازمین الجھ پڑے۔ اس دوران پولیس اور ہڑتالی آرٹیسی ملازمین کے درمیان بحث ہوئی۔ حالات کشیدہ صورتحال اختیار کر جانے پر پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ ملازمت سے محروم ہونے کے خوف سے خودکشی کرنے والی خاتون کنڈکٹر نیرجا کے اہل خانہ کو ایکسگریشیا دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کھمم ضلع کلکٹر نے نیرجا کے اہل خانہ کو 7.5 لاکھ روپے ایکسگریشیا دینے کے علاوہ دونوں بچوں کے تعلیمی اخراجات کو حکومت برداشت کرنے اور ڈبل بیڈ روم مکان دینے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ ملازمت چلی جانے کے خوف سے دل برداشتہ ہو کر نیرجا نامی خاتون کنڈکٹر نے اپنے گھر میں فین سے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ تلنگانہ کی کابینہ کا اجلاس 1 یا 2 دن میں منعقد ہونے کی توقع ہے۔ اجلاس میں آرٹیسی کی ہڑتال، اس کے متبادل انتظامات پر تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی مرکز کی جانب سے جاری کردہ موٹر وہیکل ایکٹ 2019 پر عمل، پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے پرمٹس اور دیگر تجاویز اس اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ آرٹیسی ہڑتال کا آج 5 ستمبر سے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے ریاست کی 3 تا 4,000 روٹس پر گاڑیوں کو چلانے کے لیے پرائیویٹ آپریٹرز کو پرمٹس جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، تاکہ ہڑتال کے اثر کو کم کیا جا سکے۔ ریاستی حکومت کا ماننا ہے کہ آرٹیسی کی ہڑتال کا واحد حل پرائیویٹ گاڑیوں کے مالکین کو پرمٹس کی اجرائی ہے۔ ایم آئی ایم صدر اسدالدین اویسی نے یورپی یونین کے ارکان پارلیمنٹ پر مشتمل وفد کے دورے کشمیر پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ای یو کا وفد غیر سرکاری ہے۔ انہوں نے اس معاملے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اویسی نے کہا کہ 370 پر حکومت کے فیصلے کو انٹرنیشنل لیول پر قبول نہیں کیا گیا۔
मां को बेटी से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मदद लेना पड़ा और मोदी हुकूमत फैशिस्ट और इस्लामी फोबिया का जहन रखने वालों को कश्मीर का दौरा करा रही है। क्या हो रहा है कि सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है, उसके ऊपर आप ये हरकत, इतनी बड़ी गलती, इसके ऊपर तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि एक प्राइवेट एमपीज अपनी कैपेसिटी में आते हैं और प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है, आयुष्मान भारत। अरे ये तो ऑफिशियल डेलीगेशन है ही नहीं। आपकी ये पॉलिसी है कि आप इतना बड़ा कितने दुनिया के देश विदेश जाते हैं और एक ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं बुला सकते। इससे साफ जाहिर हो गया कि डेस्परेशन है। इन्होंने जो 370 का फैसला लिया वो इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, और दूसरा, मैंने शुरू से इसकी मुखालिफत की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। अब ये देखिए, डेस्परेशन दिख रहा है, शर्मिंदगी सबको हो रही है। आप देश को क्या पैगाम दे रहे हैं, कश्मीरियों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? ये तो इनको फैसला करना है। इससे बड़ा डेस्परेशन, इतनी बड़ी गलती, ये तो इनको जवाब देना है सरकार को कि है कौन ये लोग। इनके सरकार के तो नहीं है, यूरोपियन यूनियन का ताल्लुक ही नहीं है। ये अपने प्राइवेट कैपेसिटी में आए, किसी एनजीओ ने उनको बुलाया। आखिर वो कौन सा एनजीओ है बताइए? और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर की बेटी को मिलना है अपनी मां से, तो उसको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता। और आप जो है फासिस्ट और इस्लामोफोबिया के जहन रखने वाले एमपीज को लाकर आप कश्मीर ले जा रहे हैं। अब वहां पर भी अभी मालूम हुआ कि वो उनको भी ज्यादा फिरने नहीं दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कहने पर बीजेपी लीडर्स मुल्क भर में गांधी संकल्प यात्रा कर रहे हैं। हैदराबाद के चकड़पल्ली में गांधी संकल्प यात्रा का एहतमाम किया गया है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी के अलावा तेलंगाना बीजेपी के रियासी सदर लक्ष्मण और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान गांधी जी के उसूलों से अवाम को वाकिफ करवाया गया। स्वच्छ भारत, बदनवानी की रोकथाम, प्लास्टिक पर पाबंदी से मुतल्लिक अवाम में शोर बेदार किया गया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए अवाम का ताउन बहुत जरूरी है। एक जानिब खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव, दूसरी जानिब बहराए अरब में तूफान के सबब जनूबी हिंदुस्तान के मौसम में अचानक तब्दीली आई है। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों के बताया है कि दोनों तेलुगु रियासतों के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ मकामात पर भारी बारिश हो सकती है। आज सुबह से ही तेलंगाना में मौसम तब्दील हो गया। शहर हैदराबाद के बेशतर मकामात पर सुबह बारिश का सिलसिला जारी है। अवाम को मुश्किलात पेश आई है। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि खलीज बंगाल में हवा का दबाव कम दबाव तूफान में तब्दील हो सकता है। तूफान किस इलाके से टकराएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ओहदेदारों ने दोनों तेलुगु रियासतों में आइंदा 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की पेशनगोई की है। कांग्रेस लीडर गुरु वल्लभ ने मरकजी हुकूमत की जानिब से नवंबर में आरसीईपी पर दस्तखत की मुखालफत की है। उन्होंने हुकूमत से आरसेप पर दस्तखत करने से पहले उससे होने वाले फवायद को अवाम से वाकिफ करने की मांग की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत आरसेप के जरिए हिंदुस्तानी मईशत को तीसरा बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। वल्लभ ने बताया कि हुकूमत ने नोटबंदी और जीएसटी से मईशत को नुकसान पहुंचाया है। अब आरसेप के जरिए मुल्क के किसान, आईटी और फार्मा को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। हम भरोसे काम हो रहा है भाई साहब। नोटबंदी से पहला हमला किया गया, उसके 8 महीने बाद गलत तरीके से जीएसटी लगा के दूसरा हमला किया गया, और एक तीसरा हमले की तैयारी पूरी हो गई है। नवंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी जाके उस पे साइन कर देंगे और हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। आरसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से जो किया जा रहा है, देश को अंधकार में रख के, देश के लोगों की जनभावना का इग्नोर करके जो आप कर रहे हो, वो भारत के साथ न्याय नहीं है, वो भारत के लिए हितकारी नहीं है। मेक इन इंडिया को सेल इन इंडिया, भारत में बनाओ की जगह भारत सरकार ने निश्चय कर लिया है कि भारत में बेचो, बनाओ कहीं और उसकी रूपरेखा आरसेप के द्वारा की गई। ये तीसरा हमला आरसेप, इसमें 16 देश मेंबर हैं और वो देश आपस में आयात निर्यात करेंगे ड्यूटी फ्री,
और उसमें भारत और चीन भी साइन कर लेंगे। एक तरफ तो हमको बताया जाता है, देश को बताया जाता है कि चीन को लाल आंख दिखानी है। We used to give lessons on nationalism by ruling parties that boycott Chinese product on Holi, Deepavali. Arey, what happened to RCEP? You guys are opening your boundaries tax free, duty free. चीन से माल आएगा बिना इंपोर्ट ड्यूटी के। अच्छे खासे चलती हुई अर्थव्यवस्था को किस तरह बर्बाद किया जाए, इस सरकार से सीखना चाहिए। ये आरसीएप में साइन करने का किसका दबाव है? ना तो किसान आपको कह रहा है कि आप आरसीएप में साइन करो, ना दुकानदार कह रहा है, ना छोटे और मझले उद्योगपति कह रहे हैं, ना बड़े उद्योग कह रहे हैं। किसका दबाव है? कौन है जो ये प्रेशर डालता है आपके ऊपर? हम मांग करते हैं कि बिफोर सिग्नेचर जो आप 4 नवंबर को साइन करना चाहते हो, उससे पहले भारत के एक साधारण व्यक्ति को ये बताया जाए कि इससे क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगी, कितना आप आरसेप से फायदा लोगे और कितना दूसरे देश भारत का फायदा ले लेंगे, भारत के बाजार का फायदा ले लेंगे। और इसके बाद क्या होगा? मतलब लोग कहेंगे पॉजिटिव जीरो भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि नेगेटिव ग्रोथ चालू हो जाएगी। एग्रीकल्चर किसान से पूछो, आत्महत्या पे आत्महत्या, और पहले किसान की आत्महत्या तो हमने सुना था, आजकल तो उद्योगपति भी आत्महत्या कर रहे हैं। आरएसएस के ट्रेड बॉडीज भी इसका विरोध कर रही है, भारत की जनता भी विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी विरोध कर रही है। तो ये किसके लिए कर रहे हो? तेलंगाना कांग्रेस की कोर कमेटी का इजलास गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल, हुजूर नगर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज, नवंबर में होने मुतवक्किल बल्दी इलेक्शन और दीगर मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज आरसी कुंतिया, उत्तम कुमार रेड्डी, सलीम अहमद, रेवंत रेड्डी, शबीर अली और दीगर मौजूद रहे। उत्तम कुमार रेड्डी ने हुजूर नगर ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल की। रायदुर्गम मेट्रो स्टेशन का आइंदा माह आगाज हो जाएगा। इससे कबल HMDA ने दिवाली तक तमाम कामों को मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया था। परमिशन न मिलने के सबब ताखीर हो रही है। इसके अलावा MGBS और JBS लाइन भी दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कॉरिडोर 3 जो कि नागोलता रायदुर्गम तक का है, उसका फासला जुमला 29 किलोमीटर है, जहां 24 स्टेशन हैं। इस लाइन का भी बहुत जल्द आगाज होने वाला है। डेंगू बुखार ने एक ही घर के 3 लोगों की जान ले ली है। ये वाकया आदिलाबाद के मुंचरियाल का है, जहां पर एक निजी स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले राजू की डेंगू के इलाज के दौरान 16 अक्टूबर को मौत हो गई थी। उसके 5 दिन बाद राजू के वालिद की डेंगू से मौत हो गई। वालिद की मौत के बाद राजू की 6 साला बेटी की डेंगू से मौत हो गई। राजू के घर पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। राजू की बीवी जो 9 माह की हामिला है, अपनी बेटी की मौत से गमजदा है। 2 दिन कबल वो बीमार हो गई थी। तभी जांच के बाद रिपोर्ट में बताया गया कि राजू की बीवी सोनी भी डेंगू से मुतासर है। रिश्तेदारों ने सोनी को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है। आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला M सुचित्रा ने एग्रीगोल्ड मुतासरीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत मुतासरीन को इंसाफ दिलाएगी। उन्होंने कहा हुकूमत इंतखाबी वादे पर अमल करेगी। वज़ीर दाखिला ने बताया कि हुकूमत 20,000 से कम डिपॉजिटर्स को जल्द रकम देगी। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने 1,150 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अदालत की हिदायत के बाद हुकूमत एग्रीगोल्ड के असासों को फरोख्त करके रकम अदा करेगी। ఆదుకోవాలనేటువంటి లక్ష్యంతో 20,000 లోపు డిపాజిట్లు చెల్లించాలని ఇటీవల నిర్ణయించి ఆ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. దాని ద్వారా సుమారుగా రాష్ట్రంలోని బాధితుల్లో 65% మందికి లబ్ధి చేకూరడం జరుగుతూ ఉంది. అసలన్నీ ఉన్నాయండి, ఇంకా వేలం పాట అన్నది మొదలు పెట్టలేదు. కానీ చిన్న మొత్తాల్లో ఉన్నటువంటి అంటే దాదాపుగా ఒక 65% బాధితులకు లబ్ధి చేకూరుతుంది. త్వరలోనే ఆస్తులు వేలము ఇవన్నీ కూడా మన కోర్టుకు బదిలీ చేసిన తర్వాత కోర్టు పర్మిషన్తో మిగిలిన వారందరికీ ఎవరైతే నష్టపోయి ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చివరి వ్యక్తి వరకు న్యాయం జరుగుతుంది.
आंध्र प्रदेश की वायस जगन मोहन रेड्डी जेर क़यादत हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर की तकमील के समेत एक और अहम कदम बढ़ाया है। हुकूमत जूनियर वकला को माहाना 5,000 रुपए का स्टाइप फंड देगी। उसके लिए पॉलिसी, तरीक़ेकार और रहनुमायाना खतूत का ऐलान किया गया है। रियासती हुकूमत ने YSR नेस्तम स्कीम के तहत जूनियर वकला को 5,000 रुपए की माली मदद करेगी। इस स्कीम को वकला के कौमी दिन के मौके पर 3 दिसंबर को मुतारिफ किया जाएगा। अहले उम्मीदवार वेबसाइट के जरिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। उसके लिए कानून की डिग्री, बर्थ सर्टिफिकेट और एक हलफनामा अपलोड किया जाए जिसमें बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की तफसीलात हो और सीनियर वकला से उसकी तस्दीक करवाई जाए। दरख्वास्त के साथ आधार नंबर भी शामिल किया जाए। दरख्वास्त गुजार को अपने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी फराहम करनी होंगी। जूनियर वकला को चाहे कि वो हर 6 माह में एक हलफनामा दाखिल करे। इस स्कीम के लिए हर खानदान का एक फर्द अहल है। जूनियर वकला की उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। जिला कृष्णा में तेलुगु देशम पार्टी का तौसी इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास से सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू ने खिताब किया। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में बदعنوانیوں का इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत अपने इल्जामात को साबित नहीं कर सकती। उन्होंने आबपाशी, किसान, रेत की किल्लत और दीगर मसाइल पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तेलुगु देशम पार्टी के साबिक लीडर वल्लभ नैनी वंशी बहुत जल्द YCP में शामिल हो सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो बहुत जल्द YCP में शामिल होने वाले हैं। वंशी के हामियों के मुताबिक आज या 3 नवंबर को वंशी जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में YCP में शामिल होंगे। एक जानिब तेलुगु देशम लीडर्स उन्हें तेलुगु देशम पार्टी में ही बरकरार रखने की कोशिशों में है। तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने भी उन्हें हर तरह का ताउन फराहम करने का वादा किया है। ग्राम सेक्रेटरीट के इंतखाबात में BC-SC के साथ इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। BC-SC उम्मीदवारों ने ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस पहुंचकर यादाश्त पेश की। उसके बाद BC-SC उम्मीदवारों ने नायब वज़ीर आला पल्ली सुभाष चंद्र बोस और रियासती वुज़रा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत BC-SC के लिए मुख्तस कोटे में दीगर उम्मीदवारों को भर्ती न करे। इसके अलावा अहलियत के लिए मुतय्यन करदा निशानात के फीसद में कमी करते हुए बेरोजगारों के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। मौलाना सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी पीर अल हुसैनी अल कादरी जानशीन ताहिर गुलशन करनूल ने जश्न मिलादुन नबी के सिलसिले में पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई। उन्होंने बताया कि दारुल उलूम ताहिर गुलशन करनूल के जेर एहतमाम 31 अक्टूबर को जश्न मिलादुन नबी मुनक्किद किया जा रहा है। इस मौके पर आसार मुबारक की जियारत कराई जाएगी। उन्होंने अवाम से जश्न मिलादुन नबी में शिरकत की अपील की है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जियारत आसार मुबारक का एहतमाम किया गया है। इंशाअल्लाह ताला 31 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा चौक चौराहे चौक बाजार पर जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी सदारत हज़रतुल अल्लामा रूह अहले सुन्नत डॉक्टर सैयद शाह मोहम्मद इस्माइल पीर हुसैनी रज़वी दामत बरकातुहु आलिया सज्जाद नशीन ताहिर गुलशन फरमा रहे हैं। और इसमें मेहमान खुसूसी हैदराबाद के मशहूर व मारूफ शख्सियात में से हज़रतुल अल्लामा डॉक्टर सैयद शाह मोहम्मद हमीदुद्दीन हुसैनी रज़वी दामत बरकातुहु आलिया और हज़रत सैयद शाह डॉक्टर अब्दुल मोइस कादरी शर्फी और हज़रत सैयद शाह मुफ्ती जियाउद्दीन नक्शबंदी मद्दिल्लाहुल आली मुफ्ती जामिया निज़ामिया भी शिरकत फरमा रहे हैं। और इनके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और दीगर इलाके के मुखर्रीन के भी खिताबात होंगे। बाद नमाज असर जियारत आसार मुबारक का एहतमाम किया गया है, जिसमें हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुए मुबारक के अलावा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुल्फ़े मुबारक की भी जियारत कराई जाएगी। कृष्णा जिले के नंदीगाम में तामीराती कामों के मजदूरों ने तहसील दफ्तर पर धरना दिया। एहतजाजी मजदूरों ने रियासत भर में चल रहे रेत की किल्लत के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया है। मजदूरों का कहना है कि जब से रेत की नई पॉलिसी शुरू हो गई है वो बेरोजगार हो गए हैं। एहतजाजी मजदूरों ने मसाइल हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। इस मौके पर बिल्डिंग वर्क्स यूनियन की जानिब से तहसीलदार को यादाश्त पेश की गई।
तर्ज जिंदगी में आई तब्दीली के सबब ही ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में इजाफा हुआ है, ये कहना है आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम सावंत का। ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक विजयवाड़ा में शोर बेदारी रैली निकाली गई। 3 किलोमीटर में स्कूली तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। फर्स्ट स्टेज में कैंसर का इलाज मुमकिन है। हर शहरी को चाहिए कि वो तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करे। डीजीपी ने कहा कि हर साल 1 लाख ख़वातीन कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो रही हैं। कैंसर से बचने के लिए अवाम में शोर बेदार करने की ज़रूरत है। दिन दहाड़े मकानात को निशाना बनाने वाली टोली का विशाखा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 5 रुकनी टोली के अरकान में 2 कम उम्र लड़के भी हैं। टोली के कब्जे से 18 तोला सोने के जेवरात, 35 तोला चांदी और 60,000 रुपए नकद रकम बरामद कर लिया गया है। विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नर R.K. मीना ने बताया कि इस टोली पर रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर अब तक 10 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। They were doing the all house breaking day time lo chestunnaru, and out of 5, 4 are native of Visakhapatnam, 1 fellow is native of Warangal. 18.5 tola gold and 35 tola silver and 60,000 rupee cash has been recovered. Generally, one fellow having a observation that most of the householders, they have a tendency. करनूल पुलिस की जानिब से की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़े पैमाने पर लाल संदल की लकड़ी जब्त की है। ये छापेमारी सफा कॉलेज के करीब की गई। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो महिंद्रा को भी संदल के साथ जब्त किया और 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया। एडिशनल एसपी मीडिया को कार्रवाई की तफसीलात बताई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।